हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशर। सो गाइस, जर्मनी में जयशंकर का इंटरव्यू सुन हिल गया वेस्टर्न मीडिया। भाई साहब, जर्मनी में इस टाइम मतलब जयशंकर साहब और ऐसा कुछ इंटरव्यू उन्होंने दिया और मतलब जिससे हिल गया मतलब पूरा यूरोप और वेस्टर्न मीडिया। क्या हुआ सीन जानते हैं, काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। I think you are misinformed. I think you are misinformed. We hit them very hard on a particular morning of the 10th to be precise, and that caused the Pakistanis to say, okay. दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय 3 देशों के दौरे पर हैं, जहां पर भारतीय विदेश मंत्री के द्वारा लगातार इंटरनेशनल मीडिया से इंडिया पाकिस्तान के मुद्दे पर बात की जा रही है और लगातार उनके द्वारा इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, जिसमें अमेरिका का झूठ कि उन्होंने मीडिएशन किया, साथ ही पाकिस्तान को बुरी तरह से एक्सपोज भारतीय विदेश मंत्री के द्वारा किया गया। इतना ही नहीं, जो वेस्टर्न मीडिया का नैरेटिव था इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, उसको भी भारत के विदेश मंत्री और भारत के यूनाइटेड नेशन में स्थायी प्रतिनिधि ने ध्वस्त कर दिया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल का भी करारा जवाब दिया। साथ ही जब एक मीडिया पर्सन ने यह कहा कि भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में भारत पूरी तरह से आइसोलेट यानी कि अकेला पड़ गया था और उसे दुनिया के किसी भी देश ने सपोर्ट नहीं किया, तो इस पर भी न सिर्फ जयशंकर के द्वारा बल्कि जर्मनी के विदेश मंत्री के द्वारा भी खुलकर भारत का सपोर्ट जताया गया और उन्होंने साफ ये बात कही कि जर्मनी शुरू से भारत के साथ है। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का भी जर्मनी पूरा समर्थन करता है। किस तरह से भारत के विदेश मंत्री ने वेस्टर्न मीडिया की क्लास लगाई और किस तरह से जर्मनी भारत के साथ खड़ा रहा, देखिए छोटी सी क्लिप। Initially, the new German government did not voice support for your Operation Sindoor. Were you disappointed at the time? Und an Sie, Herr Wadefuhl, vielleicht haben Sie sich jetzt ganz... And Mr. Wadefuhl, are you now fully on India's side in that conflict with Pakistan? I think you are misinformed. In fact, we had a conversation on the 7th of May, is my recollection, which was when we initiated our operations. And it was a very understanding and positive conversation. And quite honestly, even before that, the German government had expressed solidarity in face of this terror attack. And the minister also very clearly conveyed Germany's understanding that every nation has a right to defend itself against terrorism. Genau. Wir haben Yes, absolutely. On the first day in office, on my first day in office, there was a phone call I had together with a French colleague, Jean-Noël Barrot, and I was able to call my colleague with him. We got a first hand report, and Germany will support any fight against terrorism. I've just highlighted that. This is our position, and terrorism must never have a place in the world, nowhere. And this is why we will support everyone who fights and has to fight terrorism, and we very much appreciate that a ceasefire has been reached. I come to Berlin in the immediate aftermath of India responding to the Pahalgam terror attack. Let me share with you what I conveyed to Minister Wadefull in that context. India has zero tolerance for terrorism. India will never give in to nuclear blackmail. And India will deal with Pakistan purely bilaterally. There should be no confusion in any quarter in that regard. We also value Germany's understanding that every nation has the right to defend itself against terrorism. So once again, Minister Wadefull, Johan, thank you for the hospitality. He said on his own social media platform that he brokered a peace deal. I've heard voices, and you're smiling just a bit. I hear that as voices as well, that might not be the whole story. But my point is, because as I see it, the President Trump is going to the world trying to make peace. That's what he's saying. That's his ambition.
Do you agree that his approach, which is perhaps more cynical, which is more transactional, ये तो जर्मनी does में bring more full peace with है it than the more ideologically और or उसका full ideal-based support मिल गया। approach that has उन्होंने been खुद बोला है भाई for उधर some का years. फॉरेन मिनिस्टर First of ने all, बोल दिया। let me, वही ना बात you know, I ही like खत्म this telepathic interview where I just have to smile and you pick up on it. So about where, you know, our part of the world was concerned, because again, when we look at big global challenges, I think I would put terrorism right up there as one of the key challenges. We affect the entire world. And we've had to grapple with a very serious terrorist attack in April. And what followed was a consequence of that, because the terrorists were based in a neighboring country and, you know, were operating with impunity and with a high degree of state protection and support. So we had the conflict for a few days that you spoke about. We resolved that conflict for the moment in its particular military form. Through agreement and understanding for a cessation of fighting and military action. And this was something that we negotiated directly between the militaries of the two countries. The trigger for it was that after we had fighting for a few days, we hit them very hard on a particular morning, the morning of the 10th to be precise, and that caused the Pakistanis to say, okay, you know, we're prepared to stop the firing and, you know, reach an understanding about how to deal with it. So I just want to, you know, get that part of it. यहाँ पर दोस्तों न सिर्फ वेस्टर्न मीडिया में ये नैरेटिव चलाया गया कि भारत अकेला इस कॉन्फ्लिक्ट में पड़ गया था, बल्कि भारत के अंदर भी कई लोगों का ऐसा मानना था। लेकिन यहाँ पर हमें समझना होगा कि आज की परिस्थिति में कोई भी देश खुलकर युद्ध का समर्थन नहीं करता। इजराइल ने जब आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी, तब उसको भी इसी तरह से सपोर्ट मिला था जिस तरह से भारत को मिला। यहाँ तक कि भारत के अंदर कई लोगों का मानना है कि रूस ने भी भारत को धोखा दिया और कोई भी बयान नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि डिप्लोमेटिक लेवल पर रूस भारत के साथ खड़ा था। भारत के हमले से एक दिन पहले ही भारत के प्रधानमंत्री की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी बात हुई थी। इसके अलावा रूस के विदेश मंत्री की तरफ से भी भारत की कार्रवाई का सपोर्ट किया गया था। इतना ही नहीं, इग्ला एस डिफेंस सिस्टम की भारी मात्रा में सप्लाई भी भारत के हमले के 2 दिन पहले ही हुई थी। इसके अलावा भी कॉन्फ्लिक्ट से पहले और कॉन्फ्लिक्ट के बाद रूस की तरफ से अपने अत्याधुनिक हथियारों को भारत को देने की बात कही गई, फिर चाहे उसमें अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 ही क्यों ना हो। ऐसे में लोग ये समझते हैं कि रूस भारत के साथ खड़ा नहीं था या फिर अन्य देश भारत के साथ नहीं थे। वह सब मीडिया के नैरेटिव की वजह से ऐसा सोच रहे हैं। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। सीधी सी बात है भाई, बात ही जर्मनी ने खत्म कर दिया। और जर्मनी आपको पता है कितना पावरफुल एक दुनिया में देश है। उसका जब फॉरेन मिनिस्टर सामने आके बोले कि हम भाई इंडिया के टोटल साथ खड़े हैं, जो किया सही किया, क्या हमारी भाई रह गई पीछे रहता, क्या हमारे उधर जाना चाहिए। तो हमारा डेलीगेशन पता नहीं, हमारा डेलीगेशन किधर सत्तू पी के सोया। मुझे मेरी बात नहीं हमारा किधर गया यार, बात तो सुनो ना, मैं क्या कह रहा हूँ, बात तो सुनो ना। असल में बात ये ना कि ये तो फॉरेन मिनिस्टर गए हैं, इंडिया ने 56-57 लोगों की टीम बनाई है जो दुनिया के मुख्तलिफ देशों में जा रहे हैं। वो सारा दुनिया, इधर से पाकिस्तान ने भी बनाई है 12 रुकनी टीम। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर को भी चाहिए कि यार कम से कम अपना दुनिया के सामने पक्ष रखें कि यार हमने क्या किया, किस वजह से हुआ, क्या हिसाब किताब है, तब दुनिया आपकी सुनेगी। फॉरेन मिनिस्टर ऐसे तो हमारा ना, फॉरेन मिनिस्टर को उसको फॉरेन मिनिस्टर बंदा बोले कि डिप्टी पीएम उसको बोले, मुझे खुद नहीं समझ। और दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया में अगर इसी तरह नैरेटिव रहा, तुम वो दिन दूर नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में भी डाल कर देगा, जाहिर बात है, और ग्रे लिस्ट में भी डाल देगा। और जो IMF ने ऑलरेडी बोल दिया कि भाई इंडिया के साथ आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई मसला है, या अगर आप लोगों ने कोई आगे लोन चाहिए तो भाई इस दफा बड़ी सख्ती मतलब वो कह रहा है आगे युद्ध हुआ तो हम नहीं देंगे, सीधी बात की, ये फर्क है जी। तो आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।